Hi, good morning, everyone. Good morning, sir. How are you? Hmm, little better. Right. So, anything from you guys side, आप लोगों की तरफ से कुछ ऐसा है जो रिव्यू करना है या shall we start towards our topic? Yes, sir. I have to show. Yeah, please. Is it visible, sir? Yeah, So this is the cover page of Coconut Bakers. I think. right, right. Yeah, I I, added the username icon and still here two are left, two steps yeah. that are inviting Introduce. friends and Yeah. yeah. I have added the location, Hmm. mobile number, how to contact me, email, Email. business hours, and location and menu. Hmm. And I've given a post also. Okay. Yeah. This, Fair enough. So, along with this post, you have not used any hashtag, right? yeah, hashtags. Hmm. Right. Okay, so that's it. Yeah. Fine. Hmm. Looks good. That's okay. Just to add a hashtag along with your post. That's it. Thank you, sir. Anyone else? और किन्हीं का है कुछ शोकेस करना? Yes, sir. I did a post. I would like to show it. Yeah, please. Sir, this is the post. I haven't posted it on the FB page yet, but Okay. I have prepared it. Okay. ठीक है. So this is related to your Crevent, right? Yes, sir. Craven. So you have not used logo or anything anywhere? Yes, sir. I forgot. I forgot that logo. Yeah. Yeah. So you incorporate logo along with this, and then you can use it. So because this is, I think you made it just like that. So Eid Milab, so it is not nearby. But anyways, so a kind of thing that you can create and post. That's okay. Okay. Yes, sir. Hmm. Fair enough. No problem. Anything else, Shahriya, or this is it? Nothing, sir. This is it. Okay. Okay. Yeah. और किन्हीं का कुछ है? अब्दुल्ला, गनी, असलम, anyone else? In case not, just let me know so that I'll proceed on. Need not to waste you guys' time. No, sir, you can continue. All right. Enough. So today we'll be trying to go through the actual post and then boosting it and then going for the advertisement part. On Thursday, we had reviewed various kind of ads that can be created. What are the steps for creation of ads and all. Today we'll be practicing it and then we'll be taking it forward, right? So
once you open your business page, once you open your page, you will find something which is at the left side, which we call it Ad Center. Okay. At Ad Center, you will find, the moment you go to Ad Center, you will find something called Create Ad. Okay. You can go from here, or there is a very basic thing, यानी सबसे फंडामेंटल काइंड ऑफ और बेसिक काइंड ऑफ एड्स जो कि हम फेसबुक पर क्रिएट कर सकते हैं, दैट इज बूस्टिंग अ पर्टिकुलर पोस्ट विच इज ऑलरेडी अवेलेबल ऑन योर पेज. जो भी पोस्ट आपने किया हुआ है उसको हम बूस्ट कर सकते हैं, उसको हम पुश कर सकते हैं. और जैसा मैंने बताया, एज आई हैड डिस्कस्ड अदर डे ऑन थर्सडे, saying that there are three kinds of ad objective, which is awareness, consideration and conversion. तो आपको उसी तरह की चीज, जो बूस्ट का ऑप्शन आता है, वो एक सबसे बेसिक चीज है जिसको हम अवेयरनेस के फॉर्मेट पे देखते हैं. तो हम चाहें तो यहाँ पर से क्रिएट एड्स कर सकते हैं. अगर हम यहाँ पर क्रिएट एड करेंगे तो आपके सामने ये 2-3 तरह की चीजें आ जाएंगी. ओके, सो यू विल फाइंड फ्यू ऑप्शंस विच आर अवेलेबल. नाउ आप यहाँ पे देखेंगे कि लिखा हुआ है क्रिएट अ न्यू एड, बूस्ट अ पोस्ट और गेट स्टार्टेड विद ऑटोमेटेड एड्स. तो मैं सबसे बेसिक और फंडामेंटल चीज जो है वो बूस्ट अ पोस्ट के बारे में है. तो बूस्ट अ पोस्ट जो होता है वो, आई थिंक सम हैज केप्ट देयर माइक एज ओपन, सो प्रोबेबली इन केस कैन म्यूट. एनीवेज, सो बूस्ट अ पोस्ट के अंदर सबसे बेसिक चीज ये होता है कि समथिंग दैट यू हैव ऑलरेडी पोस्टेड, यू वांट टू पुश इट, यू वांट टू मेक इट मोर रीच, मैक्सिमाइज इट्स रीच टू पीपल. ठीक है, तो सबसे पहले हमें कोई ना कोई पोस्ट, जैसे आप लोग जानते हो, आप लोग कर चुके हो, तो वहां पे हमको अपने पेज के ऊपर, हम अपने पेज पे जाके वहां पे हम कोई ना कोई पोस्ट क्रिएट करेंगे और उसके बाद वहां से हम उसको बूस्ट करेंगे. ओके, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पेज है और यहाँ पे हम कोई भी एक पोस्ट हम करना चाहते हैं या हम इसको बूस्ट करना चाहते हैं. ओके, मैं आप लोगों के सामने इसी पोस्ट को फिर से पोस्ट करता हूँ, राइट, सो दैट, और आप कुछ स्माइलीज, कुछ आइकॉन्स आप अपने पोस्ट में अगर क्रिएट करते हैं तो उसका इम्पैक्ट बढ़ जाता है, राइट. सो आप कर सकते हैं. क्रिएटिव पोस्ट पे मैं जाके यहाँ पे आप जैसे भी कंटेंट डालना चाहें, बट मैं थोड़ा सा ये है कि भाई इंक्वायरी के लिए व्हाट्सएप का लिंक है. ठीक है, प्रैक्टिस सेशंस होंगे या जो भी होगा, ये सारी चीज़ें मैंने एक छोटा सा डाला है. और उसके बाद मैं यहाँ पे कोई बैनर डालना चाहता हूँ, तो बैनर मेरे पास, मैंने एक बैनर सेव कर रखा है. ठीक है, मैं उस बैनर को यूज करूंगा. एग्जाम्पल, ये बैनर मैंने यहाँ पे यूज किया. ओके, दिस इज हाउ इट इज. और मैं इसको सिर्फ बूस्ट करना चाहता हूँ. साथ में अगर मैं व्हाट्सएप मैसेजेस को कम्युनिकेशन मोड यूज करना चाहता हूँ तो व्हाट्सएप को मैं एक्टिव कर दूंगा, राइट. एंड सो मैसेज विल बी दिस, एंड देन ये इस तरह से हो गया. मैं इसको पोस्ट कर देता हूँ, सो इट विल गो फॉर पोस्टिंग. दिस इज अ नॉर्मल प्रोसेस जो आप लोग सब के सब कर चुके हो, राइट. सो मैंने इस पोस्ट को यहाँ पे, इस पर्टिकुलर चीज को मैं यहाँ पे पोस्ट कर दिया हूँ. जैसे आप पोस्ट किए हो तो आपको यहाँ पे ऑप्शन आ जाता है बूस्ट दिस पोस्ट, राइट. बूस्ट पोस्ट ब्लू कलर का बटन है. मैं इसको क्लिक करूंगा, ये अपने आप एक फॉर्मेट और सेटिंग्स के अंदर चला जाएगा. अब यहाँ पे कर रहा है, बता रहा है ऑटोमेटिक. मैं इसको चेंज करके मैनुअल कर देता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, गेट मोर एंगेजमेंट और गेट मोर मैसेजिंग. तो हम जो भी चीज करना चाहते हैं, अगर मैं गेट मोर मैसेजिंग करना चाहता हूँ तो मैं गेट मोर मैसेजिंग करके इसको सेव कर दिया, राइट. ठीक है, यहाँ पे कर रहा है व्हाट्सएप बिजनेस नीड्स, सो गेट व्हाट्सएप बिजनेस. ठीक है, अगर मैं व्हाट्सएप को ना कनेक्ट करते हुए मैं किसी और को करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे एडिट करके अपने ऑप्शंस को चेंज कर सकता हूँ, बट स्टिल इट्स बेटर टू हैव व्हाट्सएप. सो मैं व्हाट्सएप को यहाँ पे एक्टिवेट कर देता हूँ. राइट, तो हमारे इस नंबर पे व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट नहीं है, तो मैं अपने दूसरे नंबर को चेंज कर सकता हूँ. ठीक है, मैं फिर से जाके वहां पे दूसरा अपना फोन नंबर यूज कर लेता हूँ.
Okay, so I got this code. So 87082. Right, so my WhatsApp number is connected. Okay, तो ये हमारा गेट मोर मैसेजिंग के लिए हो गया. ओके, नाउ आई कैन ट्रिगर इट विद मैसेंजर और इंस्टाग्राम और दिस. सो एज ऑफ नाउ आई एम कंटिन्यूइंग विद व्हाट्सएप. इंस्टाग्राम कैसे कनेक्ट करेंगे वो हम देखेंगे और उसके बाद आएगा. तो आप लोगों के पास भी इंस्टाग्राम का डायरेक्ट कनेक्टिविटी आ जाएगा व्हेन यू विल इंटीग्रेट दैट विद इंस्टाग्राम. नाउ जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमको अपने ऑडियंस को चेक करना है. ठीक है, कि हम कौन कौन से एरिया में अपना एड पब्लिश करना चाहते हैं. जैसे आप लोगों को ध्यान होगा थर्सडे को जब हम लोग देख रहे थे तो उसके अंदर हम पोस्ट क्रिएट करने के साथ यानी मैसेजिंग है फिर बैनर है वो पोस्ट करने के बाद हमको यहाँ पे लोकेशंस डालने हैं. तो हम यहाँ पे अपने लोकेशन को जैसे मैंने कहा कि हम सिटी वाइज भी कर सकते हैं. मैं चाहूँ तो पूरा सिटी यूज कर सकता हूँ, हैदराबाद तेलंगाना. और मैं चाहूँ तो किसी पर्टिकुलर लोकेशन के पिन नंबर से भी मैं अपने ऐड को पब्लिश कर सकता हूँ. फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 5,01,000 राइट हैदराबाद के जो कुछ पिन नंबर्स हैं मैं सिर्फ वहीं पे अपना ऐड पब्लिश करना चाहता हूँ. तो मैं वहां पे भी अपना ऐड पब्लिश कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ ओनली पिन नंबर. So this Which is one how will be better, sir? it completely depends कि आप कहाँ पे आप अपने ऐड को पब्लिश करना चाहते हैं. बट अगर आप बाय इन लार्ज आपकी सर्विसेज जैसे अगर आप बेकरी की शॉप है आपकी राइट. तो अगर हम पूरे के पूरे हैदराबाद को टारगेट करेंगे तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कम एंड प्लेस ऑर्डर और दे विल प्लेस ऑर्डर ऑनलाइन और डायरेक्टली टू यू एंड देन कम एंड पिक इट अप फ्रॉम योर प्लेस. इफ यू आर डूइंग इट डिलीवरी पर्पज फॉर एग्जाम्पल बर्थडे केक है, अगर आप होल हैदराबाद 40 किलोमीटर रेडियस के अंदर डिलीवरी आप करना शुरू करेंगे तो अगर आपके पास फैसिलिटी है तो आप कर लीजिए. अदरवाइज कुछ ऐसे बिजनेसेस हैं जो कि आपको बहुत ही रीजनल और हाइपर लोकल फॉर्मेट में बेटर होते हैं. कुछ बिजनेस है जो कि आप पैन हैदराबाद लेवल पे या सिटी लेवल पे आप कर सकते हैं. तो आपके बिजनेस ऑब्जेक्टिव और डिलीवरी के हिसाब से आप इस चीज को कर सकते हैं. बट मोर और लेस आप देखिएगा जब मैंने यहाँ पे 25 किलोमीटर ऑफ रेडियस 5,01,000 विच इज इन एंड अराउंड नामपल्ली एंड एबिट्स अगर 25 किलोमीटर कर रहे हैं तो शायद उसी के रेंज में 5,04,000 भी आ जाता है विच इज इन एंड अराउंड खैरताबाद राइट. सो हम इस चीज को कम भी कर सकते हैं, हम ज्यादा भी कर सकते हैं. बट जैसा भी अगर आप पूरी सिटी कर रहे हैं तो आपका ऑडियंस बड़ा हो जाता है, आप पिन नंबर वाइज कर रहे हैं तो आपका ऑडियंस छोटा हो जाता है. ओके, तो मैं सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे दिया कि ऐसा हो सकता है कि आप कोई एक पर्टिकुलर चीज कुछ पर्टिकुलर लोकेशन में ही सिर्फ डिलीवरी कर सकते हैं और इसके साथ इसको अगर इसके अलावा अगर हम चाहें तो हम इसको हटा के कुछ और कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल शांति नगर हैदराबाद अगर शांति नगर तेलंगाना इंडिया आ गया. ठीक है, सो इफ आई वांट इट टू बी विद इन कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ वेज सो आई कैन डू दैट. ठीक है, हम किसी के लिए अगर कुछ पिन नंबर हमें मालूम है तो हम वो कर सकते हैं, अगर हमको कुछ लोकेशन मालूम है तो हम वो भी कर सकते हैं. ठीक है, अगर हम जैसे कुछ कैंपेन कर रहे हैं विच इज रिलेटेड टू सम काइंड ऑफ स्कूल और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज तो अगर हम उस तरह से करना चाहें तो हम उस तरह से भी अपने आप को टारगेट कर सकते हैं. ऑप्शन इज फेसबुक हैज गिवन एनफ ऑफ द ऑप्शन फॉर अस टू मैनेज आर ऑडियंस. हम किस रीजन में कहाँ पे किधर हम पब्लिश करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं. एट ए टाइम फॉर एग्जांपल मैं किसी और लोकेशन पे अपना ऐड पब्लिश करना चाहता हूँ. फॉर एग्जांपल दिस इज ऑल टुगेदर न्यू प्लेस. ओके, सो तो हम अपने ऐड को वहां पे भी पब्लिश कर सकते हैं. अगर मैं पैरेलली अपने ऐड को किसी और लोकेशन में भी मैं करना चाहता हूँ कोलकाता राइट, सो आई कैन चूज दैट.
और इस पर्टिकुलर ऐड को अगर हम वर्ल्ड के किसी और लोकेशन पे भी करना चाह रहे हैं तो हम कर सकते हैं, राइट। सो फॉर एग्जांपल कैलिफोर्निया हमें करना है तो हम कैलिफोर्निया पे भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाता है कि आपके ऐड जो है जहां जहां पे जिस जिस रीजन में जब आप रन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। ओके, तो मैं इतनी सारी चीजों को अगर मैं करूंगा तो चूंकि ऐड डाइल्यूट हो जाता है, बट मैं आप लोगों को सिर्फ शो करने के लिए ये कर रहा हूं कि भाई इतने सारी चीजों को हम अपने एड्स के फॉर्मेट में पब्लिश कर सकते हैं। ओके, राइट। सो अगर अगर हम सिर्फ हैदराबाद के हद तक रखना चाहें तो हम हैदराबाद के हद तक रख सकते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल मैं इतने लोकेशंस के लिए आपके सामने जस्ट फॉर फॉर ब्रीफ एग्जांपल मैं इतने लोकेशंस को कर रहा हूं, या फिर मैं इन सारी चीजों को हटा के अगर मैं इन पिन नंबर के साथ अगर मैं पूरा हैदराबाद कर रहा हूँ, ओके, तो इट विल ऑटोमेटिकली से कि इन सारी चीजों के लिए साथ साथ हमारा पूरा हैदराबाद हो जाता है। हम यहाँ पे चाहें तो हम इसको बढ़ा भी सकते हैं, हम इसको कम भी कर सकते हैं, यानी किलोमीटर का जो रेडियस है हम इसको कम भी कर सकते हैं, हम इसको ज्यादा भी कर सकते हैं। ओके, दिस इज हाउ वी कैन डू इट। Excuse me, sir. या You said we can target audience organization. So what does that mean, sir? We can type the audience name, organization names, institute. I'll come to that point. So just now I have worked on location, ठीक है। तो लोकेशन के लिए हमने किया है। अब आप देखें कि जब मैंने हैदराबाद 40 किलोमीटर कर दिया है तो ये बाकी सारे लोकेशंस भी ओवरलैप हो रहे हैं। सो टू रिमूव दैट कंफ्यूजन आई कैन कीप इट ओनली हैदराबाद, जो कि हमारा 40 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है या 30 किलोमीटर के रेडियस के अंदर है, वो हमारा कर गया। अब यहाँ पे जो आपने सवाल किया कि हम जो है कंपनीज को या उसको हम टारगेट करना चाहें, तो यहाँ पे हर कंपनी को आप टारगेट नहीं कर सकते, बट आप टारगेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन इंटरेस्ट और बेस्ड ऑन द कंपनी विच इज मेंशन ओवर हियर, राइट। तो अगर अगर मैं अपने कैंपेन जैसे यहाँ पे देख रहे हैं कि ऑटोमेटिकली ये सेलेक्ट किया हुआ इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट IBM इंडिया, राइट। सो इफ यू वांट टू चूज अ पर्टिकुलर कंपनी जो कि है अवेलेबल है तो हम उसको कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम उसको नहीं कर पाएंगे। ओके, सो ऐसा ऐसा श्योर नहीं होता कि हम सारे कंपनीज को हम टारगेट कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल IBM लिखा हुआ था, हम IBM को लिखते हैं IBM, राइट, IBM इंडिया या IBM इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अगर मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ओके, उसके बाद मैं इन्फोसिस कर सकता हूँ, विप्रो, तो Sir, विप्रो, what does this targeting means? टारगेटिंग मीन्स कि आपका ऐड किस तरह के लोगों को आप चाहते हो कि कौन से लोगों को आपका ऐड दिखे, ठीक है। तो टारगेटिंग मीन्स या ऑडियंस सेटअप जब हम कर रहे होते हैं तो ऑडियंस सेटअप में 3-4 चीजें आती हैं जो कि हम लोग उस दिन देखे थे। एक तो ये है कि सबसे पहली चीज ये है कि हम रीजन सेलेक्ट करते हैं कि कौन से रीजन में हम पब्लिश करना चाहते हैं। फिर उसके बाद होता है कि उनका इंटरेस्ट कैसा हो, वो किस तरह के लोग हों जिनको हम अपना ऐड दिखाना चाहते हैं। चूंकि अभी एक क्वेश्चन आया था कि कैसे हम कंपनीज को टारगेट कर सकते हैं, तो मैं उस चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ। उसके साथ साथ आप देखेंगे कि ब्राउज का एक ऑप्शन आ रहा है जो कि फेसबुक आपको सजेस्ट करता है कि आप उसमें से भी चुन सकते हैं। बट चूंकि मेरा एड रिलेटेड किस चीज से है, डिजिटल मार्केटिंग के ट्रेनिंग से रिलेटेड है, तो मैं इतना स्पेसिफिक नहीं करके मैं इसको ओपन अप कर सकता हूँ कि भाई दिस किसके किसके लिए ये हो सकता है। तो मैं जब ब्राउज में जाऊंगा, ठीक है, तो ब्राउज में जाके हमारे पास एजुकेशन लेवल, फाइनेंशियल लेवल, तो ये मल्टीपल ऑप्शंस फेसबुक देता है कि इन क्राइटेरिया के ऊपर आप अपने ऑडियंस को सेट कर सकते हो। यानी आप ये डिफाइन कर सकते हो कि आप ग्रेजुएट्स को चाह रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएट्स को चाह रहे हो या कॉलेज गोइंग या यूनिवर्सिटी गोइंग पीपल को जा रहे हो। तो जैसे ही मैं एजुकेशन पे जाऊंगा तो यहाँ पे एजुकेशन लेवल आता है, फील्ड ऑफ स्टडी आता है, और उसके बाद, ठीक है, एजुकेशन लेवल पे जब मैं चूज करूं तो यहाँ पे और आप ऑप्शन आ जाता है एट हाई स्कूल, एट यूनिवर्सिटी। तो प्रोबेबली समवन हु इज गोइंग टू यूनिवर्सिटी, दैट इज माय ऑडियंस। ओके, पोस्ट ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट में नॉट बी, फाउंडेशन डिग्री हो सकता है, मास्टर्स डिग्री हो सकता है, प्रोफेशनल डिग्री दैट इज ऑल्सो सम यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी में जा रहा होगा बच्चा उसको भी हो सकता है, यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स, ठीक है, या फिर अनस्पेसिफाइड भी है तो हम उसको भी टारगेट कर सकते हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटीज से रिलेटेड है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे मैंने ये कहा कि ये सारी चीजें हैं, इसके साथ साथ
वो सारे बच्चे जो कि उस्मानिया यूनिवर्सिटी में इनरोल हैं उसको भी मैं टारगेट करना चाहता हूँ। ओके, सो आई कैन डू दैट वे। तो डेमोग्राफी के अंदर मैंने अपने इंटरेस्ट के अंदर उस्मानिया यूनिवर्सिटी मैंने डाल दिया। अगर मैं फील्ड ऑफ स्टडी अगर यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि सिर्फ इंजीनियरिंग में करना चाहता हूं, तो यहाँ पे कुछ ऑप्शंस फेसबुक दे रखा है, हमको उसके हिसाब से यहाँ पे अपने ऑप्शंस चूज करना है। ओके, अगर हम चाहें तो इंजीनियरिंग नहीं, बीटेक अगर हम करना चाहें तो बीटेक भी देख सकते हैं कि क्या दे रहा है। तो बीटेक में नहीं दे रहा है, राइट। तो हम फील्ड ऑफ स्टडी जो इसके अंदर स्पेसिफाइड है उसी के हिसाब से ये सजेस्ट कर रहा है। तो ये तो हमारा एक ऑप्शन हो गया एजुकेशन लेवल पे। ओके, तो मैं उस्मानिया यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट किया हूं तो ये चीज यहाँ पे आ गया। अगर मैं यहाँ पे JNTU है या और भी दूसरे यूनिवर्सिटीज हैं उसको भी मैं चूज कर सकता हूँ। ठीक है, अगर हमको कोई स्पेसिफिक नहीं करना है तो हम इसको छोड़ सकते हैं। ओके, अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज आता है, ये आपने अपने एजुकेशन लेवल के हिसाब से आपने इसको सेट कर लिया। ओके, अब नेक्स्ट आता है कि भाई उसका फाइनेंशियल लेवल भी अगर हम देखना चाहें तो हम उसको देख सकते हैं। इन द सेंस हाउस होल्ड इनकम ग्रुप। ठीक है, तो ये यूएस से रिलेटेड जो इनकम ग्रुप का कैटेगराइजेशन है वो थोड़ा सा यूनाइटेड स्टेट्स से लेके बहुत ही ज्यादा ये स्पेसिफिक और बहुत ही डिटेल्ड है। वेयर एज इंडिया को लेके हर आदमी अपने फाइनेंशियल स्टेटस को फेसबुक के या अपने पैन कार्ड को फेसबुक के साथ कनेक्टेड नहीं रखता है, तो इसलिए वो चीज यहाँ पे पॉसिबल नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप अपने कैंपेन को यूएस के अंदर कर रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि जो बाइंग पावर लोगों का हाई हो, तो आप टॉप 10%, टॉप 10 to 25% या 25 to 50% के बीच में जैसे भी आपको चूज करना है आप चूज कर सकते हैं, राइट। ये एक चीज हो गई। ओके, तो हमारा अगर फाइनेंशियल को ये चीज नहीं, फिर उसी तरह से लाइफ इवेंट है कि अगर कोई एक ऐसी चीज आप करना चाह रहे हैं जो एनिवर्सरी से रिलेटेड है, आप किसी को टारगेट करना चाहते हैं हु इज अवे फ्रॉम द फैमिली, या फिर वो कहीं के हैं और किसी और टाउन में रह रहे हैं, राइट, तो आप उस तरह से भी टारगेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद फ्रेंड्स ऑफ जो न्यू जॉब में गए हैं, तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं अबाउट लाइफ इवेंट। तो आप अगर आपका ऑफर या आपका कैंपेन इस तरह के लोगों से रिलेटेड है, फॉर एग्जांपल न्यूली मैरिड से है या गेटिंग ऑलरेडी इंगेज्ड, उन लोगों को आप टारगेट करना चाहते हैं, गिफ्टिंग है, ठीक है, या और भी दूसरी चीजें हैं वो आप टारगेट करना चाहते हैं। उसी तरह से पेरेंट्स के ऊपर भी है कि पेरेंट्स, ऑल पेरेंट्स यू वांट टू टारगेट, और पेरेंट्स के अलग अलग कैटेगराइजेशन है कि आप पेरेंट्स को किसको टारगेट करना चाहते हैं। न्यू पेरेंट्स हैविंग ए बेबी ऑफ 0 to 12 months, या फिर सारे पेरेंट्स हैं या जिनके बच्चे 18 to 26 ईयर्स के हैं, या फिर 3 to 5 ईयर्स। तो यू कैन टारगेट बेस्ड ऑन दीज थिंग्स, राइट। नाउ इसमें बहुत सारी चीजें क्या होती हैं कि टैग्ड होती हैं, बहुत सारी चीजें टैग नहीं होती हैं। तो आप ये मान के चलिए कि जितना ज्यादा हम डिटेल्ड टारगेटिंग करेंगे उतना ज्यादा हमारा कॉस्ट थोड़ा हाइयर होता चला जाएगा, रिजल्ट थोड़े कम होंगे, लेकिन आपके जो लीड्स आपने जो डिफाइन किया हुआ है उसी को ये टारगेट करके वहां तक पहुंच सकता है। फॉर एग्जांपल हमारे ऑफर्स ऐसे हैं जो टॉडलर्स यानी छोटे बच्चों के लिए, 1 से 2 साल के बच्चों के लिए हम कोई चीज बना रहे हैं, राइट, जैसे फीडिंग किट है, या फिर उनके क्लोथिंग है, या फिर उनके विंटर क्लोथ्स हैं, या फिर टॉयज हैं। तो इस तरह की चीजों के लिए आप वो कर सकते हैं। अब आप ये देखिए कि पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन एज 18 to 26, अगर आप कोई ऐसे कॉलेज, मतलब कॉलेज मैनेजमेंट अगर अपने कोर्स को रन करना चाह रहा है, कोर्स के ऐड को करना चाह रहा है फॉर मोर एडमिशंस, तो वो किस चीज को चूज करेंगे, पेरेंट्स एंड विद एडल्ट चिल्ड्रन 18 to 26 वाले को वो चूज कर सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई हाई स्कूल के लिए करना चाह रहे हैं, इन बिटवीन रेंजिंग फ्रॉम 6 to 10th क्लास के लिए, तो 9 to 12 वाला जो कैप है उसको आप चूज कर सकते हैं। देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि फादर ने या मदर ने अपने प्रोफाइल के ऊपर कोई ऐसी चीज नहीं लिखा हो कि उसके बच्चे हैं विच इज ऑफ सो एंड सो एज ग्रुप, या वो इंगेज्ड है, या वो मैरिड है। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं, अगर वो टैग नहीं है तो वो होते हुए भी उन तक नहीं पहुंच सकते। इसलिए क्या करना है कि हम इन चीजों को भी चूज करते हुए अपने टारगेटिंग को हम
और ज्यादा डिटेल कर सकते हैं, राइट। तो उसके उसके साथ साथ जैसे मैंने ये कहा कि ये सारी चीजें हो सकती हैं, तो आप जितना डिटेल टारगेटिंग करना चाहें आप उतना डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं, राइट। अवे फ्रॉम फैमिली का जैसे मैंने बात कही वो भी चीज आप कर सकते हैं, राइट। तो इसके साथ साथ आप और नीचे जब जाएंगे तो आपको उसी तरह से पेरेंट्स का आ गया, फिर रिलेशनशिप का आ गया, या फिर वर्क का आ गया, राइट। तो अगर हम वर्क में जाएं तो वर्क में भी आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। एम्प्लॉयर्स यानी वर्क में आपको इंडस्ट्रीज है, मैं किसको टारगेट करना चाहता हूँ, किस इंडस्ट्री के लोगों को टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे चूज कर सकता हूँ। बिजनेस एंड फाइनेंस है, आर्ट्स एंटरटेनमेंट्स एंड स्पोर्ट्स है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, ठीक है। चाहे आप सबको चूज करें या अपने हिसाब से आप चूज कर सकते हैं, ओके। तो आप जो भी इंडस्ट्री चूज करेंगे आपका कैंपेन जो है उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री, जिन लोगों ने अपने इंडस्ट्री वर्किंग फॉर या इंटरेस्ट के अंदर इन चीजों को हाईलाइट किया होगा, उनको आपका एड दिखेगा। और आप ये कैटेगराइज कर रहे हैं, यानी होल हैदराबाद में मुझे सिर्फ इस तरह के लोग ही चाहिए, तो आप वो चीज कर सकते हैं, राइट। गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आप टारगेट करना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते हैं तो वो भी ठीक है, ओके। दिस इज हाउ इट इज। आप सेल्स प्रोफेशनल्स को टारगेट करना चाहते हैं, राइट। तो दिस इज अबाउट, आप एम्प्लॉयर्स को टारगेट करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप एम्प्लॉयर्स के अंदर आप देख सकते हैं कि भाई मैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री अगर मैं चूज कर रहा हूँ या एम्प्लॉयर का नाम अगर मैं चूज कर रहा हूँ तो वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे स्मॉल बिजनेसेस की बात कर सकते हैं, स्मॉल बिजनेस, स्मॉल बिजनेस और ऑनर में ऑर्थोडोंटिस्ट और स्मॉल बिजनेस ऑनर दिया हुआ है, तो दिस माइट नॉट बी सूटिंग व्हाट वी आर इंटरेस्टेड इन। जॉब टाइटल आप मैनेजर, इस टाइप से कैंपेन मैनेजर, चैनल मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, जिसको भी आपको चूज करना है आप उस हिसाब से इसको चूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें करने के बाद जब ये हो जाता है तो ये आपका किस चीज का ऑप्शन आया, ये देखिए ये सिर्फ डेमोग्राफिक्स का आया। उसके बाद आता है इंटरेस्ट का। तो ये अभी इतनी सारी चीजें जो अभी हमने चूज किया है वो सिर्फ एक प्रोफाइलिंग के लिए। अब इंटरेस्ट है, यानी फॉर एग्जाम्पल आप हो सकता है किसी और इंडस्ट्री में हो, लेकिन आपका इंटरेस्ट फैशन से रिलेटेड हो सकता है, आपका इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हो सकता है, या फिर इनोवेशन से रिलेटेड हो सकता है। तो आप यहाँ पे ये भी देख सकते हैं कि इंटरेस्ट के अंदर लोगों ने जो भी अपना नाम दिया होगा, फॉर एग्जाम्पल एडवर्टाइजिंग हो सकता है, वो एविएशन है, बैंकिंग है, जो भी है, राइट, आर्किटेक्चर है, उस हिसाब से हो सकता है। या फिर बिजनेस करने वालों को अगर हम सिर्फ चूज करना चाहते हैं, ओके, यू वांट टू चूज एंटरप्रेन्योर्स, यू वांट टू चूज हेल्थ केयर पर्सन और मैनेजमेंट पर्सन और मार्केटिंग पर्सन, राइट। तो ये जो इंटरेस्ट वाले हैं इसको भी आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो, राइट। पर्सनल फाइनेंस जिसके अंदर प्रॉपर्टी है, रिटेल है, सेल्स है, साइंस है, स्मॉल बिजनेसेस है। चूंकि मैं ट्रेनिंग से रिलेटेड हूँ तो मुमकिन है मैं स्मॉल बिजनेसेस को मैं टारगेट करना चाहूंगा, राइट। तो इस तरह से आप अपने फैशन, और इसका भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन शॉपिंग एंड फैशन, तो हम उसको भी चूज कर सकते हैं। ब्यूटी से रिलेटेड है, क्लोथिंग है, फैशन एक्सेसरीज है, राइट, या टॉयज है। तो हम इन चीजों में जब ब्यूटी में जाएंगे तो इसके अंदर ब्यूटी सलून है, कॉस्मेटिक्स है, फ्रेग्रेंस है, हेयर प्रोडक्ट है, राइट, या स्पा है, तो हम इसको भी टारगेट कर सकते हैं। तो आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं कि आप चूज कर सकते हो। और इस फाइन ट्यूनिंग और डिटेलिंग को डिटेल्ड टारगेटिंग कहते हैं। ओवरऑल ये सारी चीजें मिला के टारगेट कहलाता है, बट जितना डिटेल हम जा रहे हैं उसको हम डिटेल टारगेटिंग कहते हैं। तो जितना डिटेल टारगेटिंग करेंगे उतना ज्यादा आपका ऑडियंस नैरो होता चला जाएगा और आपके परफॉर्मेंस टू द पॉइंट होंगे कि आप जिस तरह के लोगों को टारगेट करना चाहते हैं वैसे ही लोग आप तक पहुंचेंगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल मैं इतना ही ये यहाँ पे टारगेट करना चाहता हूँ, उसके बाद मैं बिहेवियर में चला जाता हूँ, राइट। तो आप जैसे मैंने इंटरेस्ट में सिर्फ एक आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया, आप और पे भी जा सकते हैं। अब बिहेवियर है, आप अपने प्रोडक्ट उनको दिखाना चाहते हैं कि जिसका नियर बाय हो, या फिर आप डिजिटल एक्टिविटीज, एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि वो लोग जो कि
कैनवास के गेमिंग को या कंसोल गेमर्स हैं या फिर और भी टेक्नोलॉजी है, या फिर फेसबुक पे रिसेंट उन्होंने पेमेंट किया होगा। जब आप ई कॉमर्स के प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हैं तो आपको ये समझना जरूरी हो जाता है कि पीपल हु आर हैविंग बाइंग बिहेवियर ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक दिस, तो अगर फेसबुक से किसी ने परचेज किया हो तो हम कर सकते हैं कि जिन्होंने लास्ट 90 डेज में फेसबुक पे परचेज किया हो, ठीक है, या फिर हम अपने पेज को उनको भी टारगेट करना चाहते हैं जो फेसबुक के एडमिन्स हैं। फॉर एग्जांपल यू गाइस हैव क्रिएटेड बिजनेस पेज, सो आप लोग फेसबुक के एडमिन्स हो, राइट, फेसबुक बिजनेस पेज के एडमिन हो, तो हम बिजनेस पेज के एडमिन को टारगेट करना चाहते हैं, पेज एडमिन्स को टारगेट करना चाहते हैं, फूड एंड रेस्टोरेंट पेज एडमिन्स को टारगेट करना चाहते हैं। तो जिसको भी आप टारगेट करना चाहते हैं आप उस तरह के लोगों को आप टारगेट कर सकते हैं। ओके, रिटेल पेज एडमिन, ट्रैवल टूरिज्म वालों को आप करना चाह रहे हैं, राइट। ऑपरेटिंग सिस्टम्स, आप सिर्फ ये चाहते हो कि आपका एड iOS वालों को पब्लिश हो, तो आप यहाँ पे iOS ऑपरेटिंग सिस्टम जो है आपका, उसको आप टारगेट कर सकते हो, राइट। सो ये सारी चीजें। एक्सपैट्स किसको कहते हैं? एक्सपैट्स कहते हैं जो लोग दूसरी कंट्री में यानी रहने वाले कहीं और के हों लेकिन रह कहीं और रहे हैं, किसी और कंट्री में रह रहे हैं, राइट। तो आप उस लोकेशन में भी आप टारगेट कर सकते हैं, लिव्ड इन सो एंड सो कंट्री, लेकिन अभी कहीं और रह रहे हैं। तो ये सारे डिटेल टारगेटिंग के ऑप्शंस हैं जो आपके प्रोडक्ट जैसे हैं उस तरह के प्रोडक्ट को आप टारगेट कर सकते हैं। मोबाइल यूजर डिवाइस की अगर आप बात करें तो यहाँ पे आपके पास आ जाता है कि बाय ब्रांड या फिर ऑल मोबाइल डिवाइसेस बाय ब्रांड। तो आप अगर ब्रांड वाइज अगर मोबाइल डिवाइसेस को आप ये करना चाहते हो तो आप उसको भी टारगेट कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू टारगेट पीपल हु आर यूजिंग एप्पल, राइट, तो आई कैन यूज ऑल दीज थिंग्स एज वेल। तो ये आपके लिए ऑप्शन हो जाता है कि जितना डिटेल टारगेटिंग आप करना चाहें आप उतना डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। इससे आपको फायदा ये होगा कि आपको वांटेड जिस तरह के लोग आपको चाहिए उसी तरह के लोग आपको आपके ऐड को देख पाएंगे, राइट। तो ये हमारा क्या चीज हो गया? बिहेवियर। उसके बाद मोर कैटेगरीज में और आ जाता है कि अगर आप कोई और चीज इंटरेस्ट है या कुछ और है तो ये हो जाता है अदरवाइज। ये हमारा डिटेल टारगेटिंग हो गया। ओके, तो ये हमारा इतने लोगों को हमने टारगेट किया। अब इतने लोगों को टारगेट करने के बाद ये हमारा ऐड कितने लोगों तक पहुंचेगा? तो देखिए आपको यहाँ पे एक एस्टिमेट दिया है फेसबुक ने कि आपका ऐड 4.4 मिलियन पीपल तक आपका ऐड जो है पहुंचेगा, यानी तकरीबन 45 लाख या 45 लाख लोगों तक हमारा ऐड पहुंच सकता है। अब इसको, इस ऑडियंस को हम सेव कर सकते हैं। वी कैन सेव दिस ऑडियंस फॉर फ्यूचर रेफरेंस, कि हमने एक तरह का ऑडियंस बनाया और उसको हमने सेव कर लिया है। ओके, सो दिस गॉट सेव। तो अब जितने भी ऑडियंस है वो यहाँ पे आ गया। ओके, ऑडियंस मस्ट बी एडिटेड फॉर EU एंड इंडिया कांट बी इंक्लूडेड, राइट। तो फॉर यूरोपियन यूनियन के लिए हम अपने एड्स को नहीं दिखा सकते हैं फॉर व्हाट्सएप बिकॉज ऑफ सम पॉलिसी, दैट इज ओके। अब यहाँ पे आपको आ जाता है कि ये आपने टारगेटिंग कर लिया कि हमने इंडिया के अंदर हैदराबाद में 30 किलोमीटर के रेडियस में हम लोगों तक पहुंचना चाहते हैं। ओके, सो इसके लिए बेयर मिनिमम हमारा बजट जो है, और आप इसको जब सेव कर लेते हैं, ऑडियंस को जब आप सेव कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको इस तरह से आपको ऑडियंस के नाम दिखने शुरू हो जाते हैं। ओके, और फिर अब यहाँ पे आ जाता है कि भाई हम कितने दिनों तक करना चाहते हैं। जैसे मैंने बताया कि अगर हम कम से कम 4 दिन के लिए करते हैं, ठीक है, रन दिस एड एटलीस्ट फॉर 4 डेज, राइट। तो हम अगर 4 डेज के लिए करते हैं तो ये हमारा 310 रुपए, यानी एवरेजली अगर देखा जाए तो 74 या 75 रुपीज ये हमारा होता है। अगर हम इससे नीचे जाते हैं तो ये क्या कह रहा है? साफ ये कहता है कि एटलीस्ट 76.52 रुपीज आपका पर डे बजट होना चाहिए, विच इज 306 रुपीज। तो मैं इसको 310 रुपए कर देता हूं सो दैट देयर विल नॉट बी एन एरर। अब इसको करने के बाद यहाँ पे ये आ जाता है कि आप अपने ऐड को टॉप अप कर सकते हो, आप अपने अकाउंट को टॉप अप कर सकते हो। ओके, तो मैंने यहाँ पे अपना अकाउंट यहाँ पे डाल रखा है, और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे आने के बाद ये आता है पेमेंट ऑप्शन आता है कि ठीक है कि हम अपने पेमेंट को चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जाके या तो हम अपने पेमेंट को ऐड करेंगे या फिर हम अपने पेमेंट के हम यहाँ पे ये करते हैं। तो अगर हम चेंज करते हैं, राइट, तो अगर हम चेंज करते हैं तो हमारे पास
ऑप्शन आ जाता है दैट यू कैन टॉप अप योर अकाउंट यूजिंग वेरियस मेथड्स। ठीक है, आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, आप दूसरे दूसरे कार्ड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, तो आप अपने मेथड को चेंज कर सकते हैं। दैट इज हाउ एक्चुअली यू कैन डू इट। तो मैं यहाँ पर अपने जो एड अकाउंट है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने एड अकाउंट के अंदर टॉप अप करना पड़ेगा। क्योंकि मेरा ऑलरेडी कार्ड एडेड है, तो ये ऑप्शन हमसे पूछ रहा है। अगर आपका कार्ड एडेड नहीं होगा, क्योंकि आप लोग शुरू कर रहे होंगे, तो क्या होगा, ऐड अमाउंट, ऐड फंड करके एक ऑप्शन आ जाएगा। तो ऐड फंड के ऑप्शन आने के बाद आपको क्या करना होता है, वहां पे आप अपने किसी भी मेथड से, यूपीआई से, यानी अपने गूगल पे से, या फिर अपने कार्ड को, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी भी जरिए से आप अपने ऐड को, आप अपने अमाउंट को टॉप अप कर सकते हैं। ओके, जब आप अपने अमाउंट को टॉप अप कर देते हैं, तो और मिनिमम जो है एक 500 रुपीज के आसपास का आप बजट, आप इसके ऊपर टॉप अप करके आप अपने ऐड को रन कर सकते हैं। अब जब आपको ध्यान होगा कि हमने डिटेल टारगेटिंग के बाद बजट की बात की थी, और उसके बाद बजट एस्टिमेट की बात किया था कि हमारा ऐड कितने लोगों तक दिखेगा, राइट। तो जो लोगों तक पहुंचने की बात है वो ये है, टोटल बजट कितना लगेगा, और अलग अलग प्लेटफॉर्म पे हमारा ऐड कैसा दिखेगा, उसके लिए आप सारे प्रीव्यूज देख सकते हो। ओके, सो यू कैन सी प्रीव्यूज कि कौन से प्लेटफॉर्म पे आपका ऐड किस तरह से दिखेगा। ओके, सो यू कैन सी ओवर हियर कि यहाँ पे आ रहा है, राइट, मोबाइल न्यूज फीड पे आपका ऐड किस तरह से दिखेगा, राइट। उसी तरह से सजेस्टेड वीडियो व्यूज के ऊपर किस तरह से दिखेगा, तो मोबाइल मार्केट प्लेस है, ठीक है, फेसबुक स्टोरीज में किस तरह से दिखेगा, ओके, सजेस्टेड वीडियोस के ऊपर कैसा दिखता है। तो ये बहुत सारे ऑप्शंस आपको ये दे देता है। अब चूंकि मेरा अकाउंट इंस्टाग्राम से कनेक्टेड है, इसलिए अगर मैं इंस्टाग्राम पे जाऊंगा तो वहां पे भी मुझे ये दिखाएगा कि इंस्टाग्राम के प्रीव्यूज दिखाएगा कि किस तरह से वहां पे हमको दिखेगा। ओके, सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है, गनी हैज आस्क्ड, सर कांट वी पब्लिश फ्री ऑफ कॉस्ट? ऐड कोई भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता। द मोमेंट यू आर डूइंग एडवर्टीजमेंट टू एनी प्लेटफॉर्म, इट कैन नॉट बी फ्री ऑफ कॉस्ट। जो फ्री ऑफ कॉस्ट है वो वही चीज है, जैसा मैंने आपको बताया कि अपने फेसबुक बिजनेस पेज के ऊपर आप फ्री में पोस्ट कर सकते हैं, और वो पोस्ट होने के बाद आप उसको जितना ज्यादा ऑर्गेनिकली, यानी मैनुअली अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करें, अपने दूसरे जानने वालों को इनवाइट करें, या अलग अलग ग्रुप्स में आप ज्वाइन करें, तो ये सारी चीजें आपको ऑर्गेनिकली आपको पहुंचने में हेल्पफुल होगा। बट जिस तरह से अभी के हम प्रोसेस में जा रहे हैं, इस तरह से करने के बाद, जैसे मैंने वहां पे ऐड बजट और ऐड अकाउंट की बात किया, ठीक है, तो वहां पे आप अपने फंड्स को ऐड कर सकते हैं, और उसके बाद अपने इसको, अपने ऐड को पब्लिश कर सकते हैं, राइट। तो ये सारी चीजें करने के बाद जब आपका फंड ऐड हो जाता है, तो यहाँ पे बूस्ट पोस्ट नाउ, ये जो ऑप्शन आपको डिसेबल्ड दिखाई दे रहा है, ये आपका इनेबल हो जाता है, और आप जब इस पे क्लिक करते हैं तो ऐड वो पब्लिश हो जाता है। तो दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ बेसिक फंडामेंटल और बहुत ही बेसिक ऐड ऑन फेसबुक। इसी तरह से हम नेक्स्ट लेवल के एड्स को भी क्रिएट कर सकते हैं, और वहां से आगे हम जा सकते हैं, राइट। तो दिस इज हाउ वी कैन एक्चुअली डू इट। अब यहाँ पे चूंकि हमारे पास बहुत सारे बिजनेस अकाउंट्स हैं, ऐड अकाउंट्स हैं, इसलिए यहाँ पे अलग अलग फॉर्मेट के अलग अलग एड्स, यानी कौन कौन से, किसको हम चूज करना चाहते हैं, वो यहाँ पे हमें बता दे रहा है, राइट। सो अगर हम जिसको भी चूज करेंगे, उसके अंदर जितने फंड अवेलेबल होंगे, उसी के हिसाब से हम अपना बूस्ट कर सकते हैं या प्रमोट कर सकते हैं। ओके, तो सबसे मेन चीज ये है कि ये सारा सेटिंग्स करने के बाद, ये सारी चीजें सेट करने के बाद, आपको यहाँ पे एडिट करने के लिए कह रहा है कि आपको अपना ऑडियंस एडिट करना है, बिकॉज ये शायद बहुत ज्यादा डिटेल या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीजें सेलेक्ट हुई हैं जो कि ऑडियंस में नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से हमको फिर से जाके अपने ऑडियंस को थोड़ा सा रीसेट करना पड़ेगा। ओके, तो अगर हम चाहें तो हम ब्राउज के ऊपर जाके हम इसको फिर से रीसेट कर सकते हैं, जो भी हमने अभी तक जो भी चूज किया है उसको हम रीसेट कर सकते हैं। ओके, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जाम्पल, मतलब इतना सारा आप डिटेल टारगेटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ चीजों को डिलीट कर रहा हूँ, और ऐसा रख रहा हूँ कि जैसे मैं ओपन रख रहा हूँ, और किसी को भी ये टारगेट कर सकते हैं, यानी इट इज ओपन फॉर एवरीवन। सो आई कैन रिमूव फ्यू ऑफ द थिंग्स,
आई कैन ऐड फ्यू मोर थिंग्स एंड देन अकॉर्डिंगली हम इस चीज को कर सकते हैं। ओके तो जैसे जैसे हम इस चीज के अंदर एडिट करेंगे वैसे हमारा ऑप्शंस और चेंज होते जाएंगे और हमारा ऑडियंस हो सकता है कम या ज्यादा हो। ओके तो इस तरह से हम अपने ऑडियंस को बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। यहाँ पे अभी भी कुछ एरर दे रहा है कि व्हाट्सएप कैन नॉट बी रन ऑन दिस। ठीक है, तो हमें थोड़ा सा अपने ऐड के अंदर फिर से जाके हमें चेंजेस करने पड़ेंगे। ओके सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट आवर ऑडियंस। ओके ऑडियंस क्रिएट करके और यहाँ पे हम अपने पेमेंट ऑप्शन पे जाके हम इसको कर सकते हैं। तो दिस इज वन पार्ट ऑफ इट। ओके अगर हम डायरेक्टली एड सेंटर से भी जाके अगर हम पुश करना चाहें अपने ऐड को, तो हम अपने ऐड को डायरेक्टली एड सेंटर से भी जाके पुश कर सकते हैं। ओके सो ये यहाँ पे कंप्लीट प्रोसेस हो जाता है कि अगर आप अपने अमाउंट को टॉप अप कर देते हैं तो आपका अकाउंट एक्टिवेटेड हो जाता है। ओके ऑलराइट सो मैं फिर से वहां पे जा रहा हूं और उसके बाद एड सेंटर के थ्रू हम जो एड्स क्रिएट कर सकते हैं उसके लिए ये करने जा रहे हैं। राइट तो यहाँ पे जब आप देखेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे एड सेंटर्स में ऑल एड्स हैं। तो जब ये एड पब्लिश हो जाता है तो ये इस इंटरफेस पे आता है जहां पे आपको दिख के आएगा कि एड ऐड जो है वो विजिबल है या ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है या जो भी है। राइट तो जो एड कंप्लीट हो चुके हैं वो यहाँ पे आपको दिख के आएगा कि कंप्लीटेड। जो एड जैसे अभी मैं एड क्रिएट किया हूं, अगर प्रोसेस उसका पेमेंट प्रोसेस अगर प्रोसेस कर लिया होता तो यहाँ पे आ जाता है अंडर रिव्यू। राइट तो यहाँ पे अंडर रिव्यू आ जाता है। ओके तो और जब ये अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पे अप्रूव्ड और रनिंग कैंपेन के फॉर्मेट में आ जाता है। राइट तो इस तरह से हम अपने किसी भी ऐड को हम रन कर सकते हैं या हम पुश कर सकते हैं। अब अगर हम डायरेक्टली अपने पेज से अगर हम जाके अपना करना चाहें, कोई भी ऐड को अगर हम पुश करना चाहें तो हम वो चीज भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला पोस्ट ऑलरेडी मैंने कुछ वक्त पहले मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ही बूस्ट किया था, इसको फिर से चाहें तो हम बूस्ट कर सकते हैं और अपने प्लेटफॉर्म के तरफ हम जा सकते हैं। अगर मुझे इस कैंपेन को व्हाट्सएप फॉर्मेट में नहीं जाना है, मुझे इंगेजमेंट बढ़ाना है, तो मैं सीधा सीधा इंगेजमेंट पे जाके इंगेजमेंट पे जाके मैं इस चीज को यहाँ पे इंक्रीज कर सकता हूँ। तो जैसे भी ये है कि यहाँ पे हमने थोड़े से अपने ऑडियंस को कम कर लेते हैं। ठीक है, हम हैदराबाद के इन एंड अराउंड ही रखना चाह रहे हैं। सो I'll be just putting up हैदराबाद। ओके और यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट है इसको हम हटा के इसको ओपन कर दे रहे हैं। इट इज जस्ट टू शोकेस कि कैसे हम आपके सामने रिव्यू में कैसे ऐड चला जाता है, उसको मैं दिखाने के लिए ये चीज कर रहा हूँ। राइट तो आप अपने वक्त और अपने टाइम के हिसाब से इस चीज को और ज्यादा डिटेल टारगेटिंग आप कर सकते हैं, उसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। ओके सो आई हैव सेव्ड दिस ऑडियंस। आई मीन टू से मैं हैदराबाद के सारे लोगों को टारगेट करना चाहता हूं, तो यहाँ पे आप देखिए 6.6 to 7.8 मिलियन लोगों तक ये पहुंच सकता है। ये हमारा ऑडियंस हो गया। ठीक है, बाकी जो भी सेटिंग्स हमने किया था वो सेटिंग्स वैसे ही है, उसमें कोई चेंजेस मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये देखिए कि यहाँ पे हमारा क्या है, 4 दिन के लिए है, 310 रुपए मैंने टारगेट किया है और ऑलरेडी चूंकि अब कोई एरर नहीं आपको दिख के आ रहा है, वहां पे व्हाट्सएप यूरोपियन यूनियन के लिए व्हाट्सएप का जो है एक कोई फिक्स फॉर्मेट था जिसकी वजह से वहां पे इशू आ रहा था। अब यहाँ पे क्या दे रहा है कि हमारा ये अकाउंट सारी चीजें अवेलेबल हैं, मैं इसको बूस्ट पोस्ट कर रहा हूँ। ये जब बूस्ट पोस्ट करूंगा तो ये हमारा ये रिव्यू के लिए चला जाएगा। तो आपको मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जब एड आप कोई भी पब्लिश करेंगे तो कैसे वो रिव्यू में जाता है और कहाँ पे वो दिख के आता है। ओके गो टू एड सेंटर कह रहा है, ये रिव्यू में चला गया है। अब यहाँ पे आप देखिए आपके सामने यहाँ पे एक ऐड आएगा जो कि लिख के आ रहा है पोस्ट इंगेजमेंट। हमने ऑब्जेक्टिव क्या डाला है, इंगेजमेंट डाला है, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग लाइक शेयर या कमेंट करें
और ये इन रिव्यू में है। ये जैसे ही अप्रूव हो जाएगा, ये अप्रूव्ड एंड रनिंग आएगा, और जब ये हो जाएगा, जब ये एड रन होगा, तो उसका परफॉर्मेंस भी आपको दिख के आना शुरू हो जाएगा कि कितने लोगों तक ये पहुंचा है, कितना बजट स्पेंड हुआ है। पर डे 76 रुपीज का बजट है, तो उसमें से कितना खर्च हुआ है, कितना नहीं खर्च हुआ है। सो एवरीथिंग यू विल बी एबल टू नो दैट। ठीक है, इस तरह से आप अपना कोई भी एड क्रिएट कर सकते हैं। सो ये बहुत ही बेसिक लेवल का एड है जिसको कि हमने क्रिएट किया है। अब इससे नेक्स्ट लेवल के एड्स हैं, और भी चीजें जो है वो हम कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज ये है कि अभी मैं सबसे बेसिक चीज ये समझाया हूं। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट की ट्रैफिक की तरफ भी हम कैंपेन क्रिएट कर सकते हैं, और हम दूसरे जो ऑप्शन है उसको भी हम कैंपेन फॉर्मेट में हम क्रिएट कर सकते हैं। तो आप अपने ऑडियंस को मैनेज कर सकते हैं, ऑडियंस को नाम दे सकते हैं, और अलग अलग कैंपेन अलग अलग लोगों के लिए आप क्रिएट कर सकते हैं। ये सारे ऑप्शंस आपको होते हैं। लेकिन आपका एड तभी पब्लिश होगा जब आप अपने एड के अंदर, यानी अपने बिजनेस अकाउंट के ऊपर आप कुछ अमाउंट टॉप अप करेंगे, एंड विच इज मिनिमम जो आपको रिक्वायर्ड है, ये 310 प्लस टैक्स, यानी ऑलमोस्ट 400 रुपीज के आसपास अगर आप अपना कैंपेन में अमाउंट फंड करते हैं, then you can run the campaign which is basic, which is minimum. जैसे जैसे एडवांस कैंपेन की तरफ हम जाएंगे, वैसे हमारे रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाएंगी। मैं उन चीजों को भी टॉप अप करने के बाद, मैं अपने अकाउंट को टॉप अप करके आप लोगों को वो भी चीज दिखाऊंगा, क्योंकि लीड जनरेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। आप भले उसको प्रैक्टिस अभी ना करो, बिकॉज दैट रिक्वायर्स एटलीस्ट 3000 रुपीज और 2500 रुपीज टू रन अ कैंपेन एटलीस्ट फॉर 7 days टाइम। यानी जैसे जैसे आपका एड ऑब्जेक्टिव बढ़े, चेंज होगा, वैसे वैसे फेसबुक आपको सजेस्ट करेगा कि क्या रिक्वायर्ड बजट होनी चाहिए बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। ओके, तो उस तरह से हमको अपने आप को चेंज करना पड़ेगा। तो लीड जनरेशन के लिए लीड जनरेशन के लिए हमें ऑडियंस भी सेट करना पड़ता है, और उसके साथ साथ हमें फॉर्म भी क्रिएट करना पड़ता है। एक फॉर्म हमें क्रिएट करना पड़ता है जिसके हिसाब से हम इसको रन करते हैं। तो अभी मैं लीड जनरेशन वाला कैंपेन हम कल क्रिएट करेंगे। आज मैं बूस्ट ऑप्शन तक ही हूं, और बूस्ट के अंदर भी आप एक दो ऑप्शंस और ट्राई कर सकते हैं। जैसे आपने देखा कि मैसेजिंग है, इंगेजमेंट है, तो ये एक दो ऑप्शंस हैं जिसको कि आप बेसिक बूस्ट के अंदर आप ट्राई कर सकते हैं। जैसा हम लोग जानते हैं, या हम लोगों ने देखा था, स्क्रीन को हम लोगों ने देखा था, उसके अंदर ये है कि हमारा जो एड ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले अवेयरनेस है, जिसके अंदर दो ऑप्शंस आते हैं, यानी रीच है और एंगेजमेंट है। राइट, तो इस तरह से रीच है, रीच को मैक्सिमाइज करना है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना है, तो वो हमारा बूस्ट कैंपेन के ऊपर वर्कआउट होता है। जैसे ही हम अपना एड ऑब्जेक्टिव कंसिडरेशन की तरफ मूव करते हैं, जहाँ ट्रैफिक बिल्डिंग हो सकता है, वहाँ ऐप इंस्टॉलेशन हो सकता है, वहाँ लीड जनरेशन हो सकता है, कमेंट हो सकता है, मैसेजिंग हो सकता है, तो हमारा बजट थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जब हम शॉपिंग पे चले जाते हैं तो ये पूरी तरह से और थोड़ा एस्केलेट हो जाता है। बट मोर और लेस दो तीन चीजें जो कि है इस पूरे पेड कैंपेन के अंदर जो जानना जरूरी है, वो ये है कि सबसे पहली चीज, हम कैसे एक बेसिक रीच को, बेसिक पोस्ट को हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, अपने ऑडियंस जो हम चूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हम पहुंचाना चाहते हैं, तो उसका एक ये ऑप्शन है। दूसरा हो जाता है हमारा ट्रैफिक, जो कि जब आपकी वेबसाइट है या कोई लिंक है तो हम वहां से जनरेट करेंगे। तीसरा लीड जनरेशन है, जिसके अंदर आप यूजर्स के नेम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, उसके डिटेलिंग और कैप्चर करते हैं। तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ प्राइवेसी पॉलिसी सेट करना पड़ता है, और कुछ ना कुछ हमको फॉर्म्स क्रिएट करने पड़ते हैं। तो ये दोनों चीजें हम कल इस चीज के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे, और कल इसके ऊपर हम लोग देखेंगे। और फिर जब इंस्टाग्राम का भी कल जो हम लोग शुरू करेंगे, तो तब हम इंस्टाग्राम का भी बिजनेस अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, उसको आप फेसबुक से कैसे लिंक कर सकते हैं, ये दो एक्टिविटी करने के बाद फिर हम लीड जनरेशन की तरफ जाएंगे, सो दैट आपका एड फेसबुक पे भी पब्लिश हो सकता है और आपका एड इंस्टाग्राम पे भी पब्लिश होगा। राइट, नाउ ओवर टू यू गाइस, इन केस यू हैव एनी क्वेश्चन आप पूछ सकते हो। हेलो, Assalamu alaikum, sir. वालेकुम सलाम। Sir, I want to share my screen and show you the logo and या प्लीज प्लीज।
प्लीज कर सकते हो आप। Is it visible, sir? या Yeah, sir. So as I had created different things before, so I did it again. Just 1 second. Yeah. This is my logo. ओके, क्रेडेंस एकेडमी, ओके, And this is my business card. या ओके। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो, आपका एकेडमी का कलर और आपके कार्ड का बैकग्राउंड का कलर दोनों एक हो रहा है, तो अगर आप Actually, I changed that. Maybe it has not updated. Yeah, Right, I right. changed it. राइट, या ठीक है, So yellow कर दी sir हम हाँ उसको. ठीक है, And I created this one post. ऑलराइट, गुड। सी मोर पे जाएं, सी मोर पे क्या दे रहा है? See more. हाँ वहाँ पे है ना, ग्रैंड ओपनिंग सून, हाँ ओके, सो यू हैव केप्ट हैशटैग एज वेल, गुड, अच्छा. ठीक है, नाइस। सो एटलीस्ट आप लोगों का ये है कि ऑलमोस्ट ऑल ऑफ यू जो है प्रिपरेटरी चीजें जो फेसबुक प्रमोशन के लिए है वो करीब करीब आपका रेडी है। अब वहाँ से I'm like, though it is paid thing, but still I'll suggest कि थोड़ा बहुत एक 500 रुपए लगेंगे, या ये कह लो कि मल्टीपल ऑप्शंस ऑफ एड्स इफ वी ट्राई, इट मे कॉस्ट कपल ऑफ थाउजेंड्स और 1-2 हज़ार लग सकता है अगर आप उस चीज को प्रैक्टिस करो। बट बेयर मिनिमम जो हमारा बूस्टिंग का है या फिर लीड जनरेशन को क्रिएट करने के लिए है, ये कर लें। बट एज एंड व्हेन एटलीस्ट एक लाइफ साइकिल आपका कंप्लीट हो जाए, सो दैट आप उसको जब भी आप करना चाहें, जब भी आपके पास फंड है तो आप उसको मैनेज कर सकते हैं। बट दीज थिंग्स आर एड्स, जैसे मैंने बताया कि एड्स आपका तभी पब्लिश होगा जब आपके पास आपके अकाउंट में आप वहाँ पे अमाउंट टॉप अप करोगे। वो कार्ड से हो सकता है, वो यूपीआई से हो सकता है, नेट बैंकिंग से हो सकता है, या फिर हाँ यही 3-4 ऑप्शन है। कार्ड बोले तो डेबिट कार्ड और डेबिट क्रेडिट कार्ड दोनों हैं। नेट बैंकिंग इज नोन, यूपीआई आप अपने गूगल पे के यूपीआई से या फोन पे के यूपीआई से आप, या बैंकिंग के डायरेक्ट यूपीआई से आप टॉप अप करके आप अपने ऐड को रन कर सकते हो, राइट। सो जब आप टॉप अप कर रहे होगे तो जो पेमेंट का ऑप्शन आता है वहाँ पे एक बटन आता है ऐड फंड। द मोमेंट यू क्लिक ऑन ऐड फंड, वो वहाँ पे आपको ऑप्शंस दिखा देते हैं, राइट। सो दिस इज हाउ यू कैन डू इट। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम होगा तो कल हम लोग इसी टाइम पे आप लोग अपने स्क्रीन शेयर करके जो प्रॉब्लम हो रहा है वो आप दिखा सकते हैं, देन अकॉर्डिंगली। बट माय सजेशन इज एटलीस्ट एक थोड़े से पैसे अगर लग जाते हैं, डोंट टेक इट अदरवाइज, बट प्रैक्टिस कर लेंगे तो शायद बेहतर होगा। दैट इज हार्डली कपल ऑफ हंड्रेड्स। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। या Sir, what about YouTube ads? YouTube ad will come under Google paid ad. So Okay, okay, sir. for now we are discussing about Facebook ads. Facebook ads में आपको ऑप्शन है कि आप वीडियोस भी अपलोड करके वीडियोस व्यूज बढ़ा सकते हो, तो वो भी हम देखेंगे। अगर आपके पास अभी, चूंकि हम लोगों ने वीडियो कैनवा पे कैसे वीडियो क्रिएट किया जाए वो चीज हम लोगों ने प्रैक्टिस नहीं किया है, इसलिए YouTube और Facebook का वीडियो ऐड या Instagram का वीडियो ऐड ये हम कलेक्टिवली एक साथ करेंगे जब हमारे पास वीडियो रेडी होगा। बट यस, वी विल बी कवरिंग दैट टॉपिक एज वेल इन सब्सिक्वेंट डेज, ठीक है। और किसी का कोई क्वेश्चन है? All right. If not, then we'll be taking a break for today. और आप लोग अगर प्रैक्टिस कर लें तो अच्छा है, माना कि ये पेड है, बट जो भी कर सकते हैं एटलीस्ट करिए, फिर देखते हैं जैसे भी करना है, राइट। ऑल राइट गाइज, हैव अ ग्रेट डे। Yes, sir. ऑल राइट, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।